reproduction in lower and higher animal in that 2.3, that is menstrual cycle, which is also called it as a ovarian cycle. Okay, which is also called it as a ovarian cycle. So what is the meaning of menstrual cycle? So menstrual cycle is nothing but a puberty age of the female. ओके जैसे मेल के अंदर प्यूबर्टी के टाइम में स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, बट फीमेल के अंदर oogenesis बर्थ होने के पहले ही स्टार्ट हो जाता है, बट वो एक पर्टिकुलर स्टेज तक आके स्टॉप हो जाएगा, और उसके बाद वाला जो स्टेज है जो पूरा कंप्लीशन है वो कब स्टार्ट होगा? सो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, दैट इज 13 to 15 के एज में. ओके इन अ फीमेल दैट एज इज वेरिंग फ्रॉम 13 to 15 एज, एंड ये नॉर्मली 28 डेज का होगा, एंड इन द 28 डेज देयर इज अ ovarian follicle. Okay, there is a change in ovarian follicle and ova production is a take place inside a ovary of a female. ओके फीमेल के ओवरी के अंदर ओवा का प्रोडक्शन होगा, दैट इज सेकेंडरी oocyte का प्रोडक्शन होगा, और फिर ओवुलेशन के टाइम वो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट अ मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद menstrual cycle. So the first point, menstrual cycle is a characteristic features of the primates including human. Okay, so it is only seen in a primates animal, that is monkey hai, then ape hai, than human. Okay, well known example of the primate that is a human. So human के अंदर female के अंदर menstrual cycle show होगा. Then what is the change take place in the menstrual cycle? So it involves a series of cyclic changes in a ovary. Okay, series of cyclic changes in a ovary. ovary के अंदर cyclic change होगा. Now you can see in this diagram, ये diagram के ऊपर आपको ये region में जो दिख रहा है, so ये region में ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड इट एज अ ग्राफियन फॉलिकल. ओके सो उसके पहले क्या होगा? सो उसके पहले ये जो फर्स्ट पार्ट है, नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, primordial follicle is converted into primary follicle, then primary follicle is converted into secondary follicle, then not all secondary follicle is converted into a graphian follicle, some of them are degenerated, that is call it as a atresia, और कुछ पार्ट में जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल में, और ग्राफियन फॉलिकल बराबर 21 डेज में ये ब्लस्ट होके इसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा, दैट इज कॉल इट एज 14 डेज में ओवुलेशन होगा, और ओवुलेशन के टाइम ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है ये ओवरी में से बाहर निकल जाएगा. देन that remaining part of a graphian follicle is converted into yellow color body, corpus luteum, and it is converted into white color body, that is called it as a corpus albicans. So this is a cyclic changes in the ovary, that is ovarian follicle का formation होगा in a female reproductive tract, and mainly in the uterus. uterus में क्या change होगा? Now you can see in this diagram. So now you can see that the size of the endometrium of the uterus are increase in the size. जो एंडोमेट्रियम का जो यूटेरस का पार्ट है वहां पर उसका साइज क्या हो जाएगा? डे बाय डे इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे ही 14 डेज के बाद ओवुलेशन के बाद 7 डेज में 14 से लेके 17 डेज तक अगर ओवुलेशन नहीं हुआ, और ओवुलेशन के बाद में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, दैट इज यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, सो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में अगर स्पर्म नहीं गया, सो अल्टीमेटली अगेन ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और एंडोमेट्रियम का वॉल फिर से शेड ऑफ होके ब्लीडिंग वगैरह होगा पीरियड्स के टाइम में. सो दैट ब्लीडिंग इज कॉल्ड इट एज अ फर्स्ट डे ऑफ दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल. देन next point, these changes take place under the effect of gonadotropin hormone and the ovarian hormone respectively. Okay, so now what happened? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि फीमेल के अंदर अगर प्यूबर्टी का एज आ गया, दैट इज 13 to 15 का एज जैसे ही कन्वर्ट हो गया, सो एट दैट टाइम फीमेल के अंदर हमारे ब्रेन के अंदर होता है हाइपोथैलेमस. इन अ ब्रेन रीजन there is a one part that is called it as a hypothalamus. That hypothalamus will secrete the gonadotropin releasing hormone, that is GnRH, और वो जैसे ही वहां से रिलीज हो जाएगा
तो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड इन आवर बॉडी। सो वो फिर सिक्रीट करता है। पहले हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देता है कि गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को रिलीज करना है, यानी कि गोनाड्स के डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन है, जो गोनाड फीमेल के अंदर ओवरी है, तो ओवरी के डेवलपमेंट के लिए हार्मोन्स को रिलीज करना। सो ये मैसेज जैसे ही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से pituitary glands को मिलेगा, so pituitary glands in a female will secrete a two type of hormone, that is FSH and LH, that is follicle stimulating hormone and LH। और ये ब्लड में मिक्स होके कहां पर आएगा, ओवरी के रीजन में आ जाएगा। और ये जैसे ही ओवरी के रीजन में आएगा, सो ओवरी के अंदर फिर क्या हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन, यानी कि आप लोग देख सकते हो ये डायग्राम में प्राइमोर्डियल फॉलिकल का, सेकेंडरी फॉलिकल में, देन सेकेंडरी फॉलिकल का ग्राफियन फॉलिकल में, और फिर ओवुलेशन, और फिर कॉर्पस ल्यूटिनम और अल्बिकांस में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड एज वेल एज एट दैट टाइम जो ओवरी है ये दो टाइप के हार्मोन सिक्रेट करता है, एक प्रोजेस्टेरॉन, ओके, एक प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करेगा। सो दीज आर द हार्मोन व्हिच विल कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फोर हार्मोन है, दो पिट्यूटरी ग्लैंड और दो ओवरी सिक्रेट करेगा। देन द नेक्स्ट पार्ट, this cycle are repeated with a periodicity of approximately 28 days. In some female that cycle it's about the 30 day, किसी में 27 days का है, किसी में 26 का डे का है, किसी में 32 days का, but average and approximately that cycle is repeated in every टाइम इन अ 28 डेज। 28 डेज में वो पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, फिर से सेकेंड ओवरी में ओवुलेशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। देन the middle of each cycle is characterized by release of egg. Now you can see the diagram, बराबर मिडल में, ओके, यहाँ पे बराबर मिडल में 14 डेज में, ओके, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई हो जाएगा, ओके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, और फिर वो किसको मैसेज देगा, तो ये ग्राफियन फॉलिकल जो फॉर्म हो गया है वो उसको मैसेज देगा कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte है उसको रिलीज करना, और फिर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड इट एज ओवुलेशन इन अ 14, यानी कि बराबर 28 का हाफ, यानी कि मिडल ऑफ द ईच साइकिल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलीज ऑफ एग, एग वहां से रिलीज होगा ना। हम लोग इसको नॉर्मली एग बोल रहे हैं, बट इट इज नॉट द प्रॉपरली एग, वो हाफ साइकिल मींस हाफ कंप्लीशन हुआ है, अभी तो को पूरा का पूरा एग का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, याद रखना। दिस इज कॉल्ड इट एज अ सेकेंडरी oocyte। और फिर सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस 2 होने के बाद, ओके, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 होने के बाद एक ओवम और दूसरा सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता, और ये कब होगा, तो ये फर्टिलाइजेशन के टाइम होगा, मींस फर्टिलाइजेशन में। और बस स्पर्म के लिए ऐसा नहीं है, मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस में वो डायरेक्टली हो जाएगा, फीमेल के अंदर ऐसा नहीं है, फीमेल में जब फर्टिलाइजेशन होगा तब पूरा का पूरा ओवम का फॉर्मेशन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, दिस एग इन एवरी साइकिल कम्स अल्टरनेटली from one ovary. So female reproductive system in a human consists of two ovary. So out of that two ovary, one ovary will function in one menstrual cycle. Then second जो menstrual cycle start होगा उस टाइम में जो second वाले ovary के अंदर क्या होगा, ओवा का प्रोडक्शन, यानी कि menstrual cycle start हो जाएगा। So this is all about the menstrual cycle. Now we will go to a next slide. What happened during a menstrual cycle in a just a brief, okay? So the menstrual cycle in a female are divided into a 4 phase, okay? Menstrual cycle in a female is divided into a 4 phase. Now you can see in this diagram, okay? ये diagram में आपको दिख रहा होगा, देखो right side में। So पहले हम लोग ये diagram को समझ लेते हैं, ये diagram कैसे निकालना है, and then how to identify the diagram, इसको याद कैसे रखना है। If you can draw the diagram, अगर पूरा का पूरा diagram अगर आपको draw करने आ गया, then you can write the 4 phase, ये पूरे के पूरे 4 phase आप लोग लिख सकते हो, और ये बहुत ही easy है। Now you can see that suppose this is 0, और ये अगर मैंने ले लिया x axis, okay, now you can consider this is x axis
और दिस इज y एक्सिस. ओके, नाउ यू कैन टेक द x एक्सिस. अगर हमने x एक्सिस लिया तो x एक्सिस में देखो क्या किया है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके पूरे टोटल 28 डेज है. सो उनका उन्होंने नंबर किया, 4 फेज में डिवाइड किया. सो जो पहला वाला फेज होता है दैट इज अ मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें मेंसेस होता है यानी कि ब्लीडिंग होता है, वो एवरेज 5 डे का होता है. यानी 0 to 5 डेज क्या होगा, ब्लीडिंग होगा. सो दैट 5 डेज इज कॉल्ड एज अ मेंसेस. ओके, सो इन्होंने देखो पहले 0 to 28 पहले लिख दिया है लास्ट तक, और फिर फर्स्ट वाला फेज जो है इसको 5 में डिवाइड कर दिया, 0 to 5 menstrual phase, and that is also called it as a menses, जिसके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट होगा. मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट यानी याद रखना, जिस टाइम ब्लीडिंग स्टार्ट होगा दैट पार्ट इज कॉल्ड इट एज अ फर्स्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो 0 to 5 फर्स्ट है. ओके, देन 5 to 13, 5 to 13 प्रोलिफरेटिव फेज. देन बराबर 14 डेज में देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में. सो देयर इज अ रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte दैट इज ओवम. सेकेंडरी oocyte क्या हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल में से, that is called it as ovulation. Okay, so this now can see in this diagram, this ovum is ये है ग्राफियन फॉलिकल, और इस ग्राफियन फॉलिकल में ये जो रीजन है that is a ovum and secondary oocyte, और बराबर 14 डेज में ये यहाँ से रिलीज होगा. और उस टाइम देखो कुछ हार्मोन्स है, now can see that LH का लेवल, ओके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई हो गया है. वो कहाँ से सिक्रेट होगा उसके ऊपर भी जाएंगे, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं. सो ये 14 डेज में थर्ड वाला फेज आ गया, जो कि यहाँ राइटिंग में नहीं लिखा है, बट 14 वाला डेज समझ लेना कि ओवुलेशन का फेज है, और 5 से लेके 13 प्रोलिफरेटिव फेज है. ओके, डन. 14 के बाद में 15 to 28 सबसे बिगर जो फेज है दैट इज अ लास्ट फेज, सेक्रेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज है. ल्यूटियल फेज में क्या होगा, सो नाउ कैन सी दैट प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है ल्यूटियल फेज में हाई हो जाएगा, और एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा हाई रहेगा. और प्लस यू कैन सी दैट एंडोमेट्रियम का जो वॉल है इसका साइज इंक्रीज ही होता रहेगा. ये फेज में क्या होगा, एंडोमेट्रियम का वॉल इंक्रीज हो. अभी ये तो अभी आपको समझ गया एक्स एक्सिस पर क्या लिखना है और कैसे डिवाइड करना है. फर्स्ट 0 to 5 menstrual phase, then 5 to 13 proliferative phase, 14 ovulatory phase एंड 15 to 28 secretory phase. So इन्होंने यहाँ पर ये डिवाइड कर दिया. और लाइकवाइज फिर क्या करना है हमको, ये आगे जो y एक्सिस है इसके ऊपर इन्होंने अलग अलग हार्मोन्स कहाँ कहाँ से सिक्रेट हो रहा है और उसके वजह से क्या चेंज हो रहा है और कौन से डेट तक कितना चेंज हो रहा है वो यहाँ पर फिर हमको राइटिंग में देना है. नाउ द फर्स्ट पार्ट, नाउ कैन सी दिस पार्ट. क्या लिखा है, सो द फर्स्ट पार्ट इज गोनाडोट्रोपिन हार्मोन लेवल. गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होगा, सो मैंने जस्ट आपको बोला था कि हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. सो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से. देन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मैसेज देता है वहीं पर कि रिलीज करना है गोनाड्स के डेवलपमेंट के हार्मोन. और फीमेल के अंदर गोनाड्स के डेवलपमेंट के हार्मोन होते हैं FSH दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. यानी कि ये जो फॉलिकल फॉर्म हो रहा है ना उसके लिए FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, and the second hormone that is a luteinizing hormone LH. So these two hormone are secreted from pituitary glands. So ये जो first level है gonadotropin hormone, so these two hormone are secreted from पिट्यूटरी ग्लैंड्स. पिट्यूटरी यानी कि हमारा मास्टर्स ग्लैंड्स है. ओके, आई बॉल की जस्ट डाउनवर्ड पीछे के रीजन में लोकेटेड होता है सेला टसिका कैविटी के अंदर. नाउ यू कैन सी. अब देखो अब ये लेवल कैसे समझना है, FSH और LH का लेवल कब हाई करना है. नाउ यू सी दैट FSH का फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. यानी कि ये फॉलिकल के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करते हैं. अब देखो फॉलिकल का फॉर्मेशन कब स्टार्ट होगा, सो नाउ वी कैन सी दैट डायग्राम. जो फर्स्ट डे है यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से लेके 13 डे तक, ओके 13 डे तक किसका लेवल हाई रहेगा, ग्राफियन फॉलिकल. सो ये सभी फॉलिकल है. प्लस ओवुलेशन के बाद ये जो कॉर्पस ल्यूटिनम है देन ये सब जो लेवल है दीज आर नथिंग बट द फॉलिकल. सो इन सभी का लेवल इन सबको मेंटेन रखना है तो FSH है. सो नाउ वी कैन सी दैट FSH का लेवल बराबर फर्स्ट और 0 डे से हाई हो जाएगा. फर्स्ट डे से हाई होगा और ये हाई हाई रहेगा. और जैसे ही
ओवुलेशन होगा तो उस टाइम भी थोड़ा सा लो होके फिर से इंक्रीज हो जाएगा एफएसएच का लेवल। देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कैसे रखना है, तो ये एफएसएच के साथ ही रखना है, बट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के वजह से बराबर ओवुलेशन होता है और ओवुलेशन 14 डेज में होता है। सो बराबर 14 डेज वाला जो लाइन है वहां पर देखो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई हो गया है। ओके, सो दिस इज अ पार्ट। ओके, सो इस पार्ट में इसका लेवल हाई होगा। सो एफएसएच का लेवल ये इतना पार्ट जो है इसके अंदर हाई रहेगा। एलएच का लेवल जो सेकंड पार्ट है ना, यू कैन सी दैट एफएसएच का लेवल ओवुलेशन के बाद में लो हो गया है और एलएच का लेवल हाई रहेगा उस टाइम। देन जैसे ही ये एंड हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा रिएक्शन। फर्स्ट डे में एफएसएच का लेवल फिर से हाई और फिर बराबर 14 के बाद, ओके 14 के बाद 15 से लेके 28 यानी कि जो फोर्थ वाला फेज है उस टाइम एलएच का लेवल हाई रहेगा और एफएसएच का लेवल लो ही रहेगा थोड़ा सा। So this is all about that first part. Now the second part, ovarian cycle. Ovarian cycle यानी ओवरी के अंदर कॉर्टेक्स रीजन में फॉलिकल का डेवलपमेंट होगा। सो दैट इज फर्स्ट पार्ट इज प्राइमोडियल फॉलिकल है, देन ये प्राइमरी फॉलिकल है, फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल है एंड देन इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल। नाउ यू कैन सी दैट जो पहले टू डायग्राम है दैट इज प्राइमोडियल फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल, ये हमको फर्स्ट 5 डेज में, प्लस जो थर्ड वाला भी है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी सॉरी सेकेंडरी फर्स्ट वन इज कॉल्ड इट एज अ प्राइमरी primordial germinal cell, then primary follicle and secondary follicle. So secondary follicle को हमको बराबर 5 डेज वाला जो मेंसेस वाला साइकिल है इसके जस्ट हाफ पार्ट वहां पे दिखाना है और आगे वाला पार्ट ये वाले फेज में यानी कि सेकेंड फेज में दिखा देना है। और फिर ग्राफियन फॉलिकल बराबर 13 डेज में फुल्ली फॉर्म हमको दिखा देना है। ओके, सो दैट इज ग्राफियन फॉलिकल। और बराबर 14 डेज में हमको क्या दिखाना है, ये ग्राफियन फॉलिकल कट हो जाएगा और वहां से सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा। और फिर उसके बाद में ये तीनों येलो कलर के जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड इट एज अ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम करके दिखाना। और उसके साइज धीरे धीरे डी जनरेट हो रहा है और लास्ट में अगर दिखाना है तो यहाँ पर हम लोग व्हाइट कलर का कॉर्पस अल्बिकांस करके भी दिखा। सो दीज आर द कॉर्टेक्स के रीजन में ये जो अलग अलग टाइम में क्या क्या चेंज हो रहा है ओवेरियन फॉलिकल में वो यहाँ पे दिखा है। देन थर्ड वाले में क्या हुआ है, सो थर्ड में ओवरी कौन से हार्मोन रिलीज करा है, सो ओवरी आर रिलीजिंग अ टू हार्मोन एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, सो ओवरी टू हार्मोन रिलीज करेगा दैट इज एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब यहाँ पे फिर से वैसे ही देखो, याद रखना आपको ये वाले फेज में हमने ये वाला जो फॉलिकुलर फेज है इस टाइम हमने फर्स्ट वाले पार्ट में एफएसएच का लेवल हाई रखा था। यहाँ पर हमको एस्ट्रोजेन का लेवल हाई रखना है और बाद में एस्ट्रोजेन के लेवल को थोड़ा लो करना है और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को हाई करना। प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। सो जब तक ओवुलेशन नहीं होगा, एग नहीं निकलेगा और फिर उसके बाद का फेज नहीं स्टार्ट होगा तब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो रहेगा ओवरी के अंदर। और जैसे ही ओवुलेशन हो जाएगा उसके बाद में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो जाएगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पर लो लो होता हुआ आपको दिखेगा। मीन्स अगर प्रेगनेंसी मेंटेन रहा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आगे लो हो जाएगा और फिर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा। वो उस 9 मंथ के लिए या तो 1 ईयर के लिए वो फीमेल में नहीं आएगा। देन एस्ट्रोजेन का लेवल कैसे याद रखना है, सो नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम एस्ट्रोजेन का लेवल ये जैसे जैसे एंडोमेट्रियम का वॉल है इंक्रीज हो रहा है तब तब ये हाई होता जा रहा है और फिर उसके बाद ओवुलेशन के बाद लो होता है और फिर से थोड़ा हाई होके लो होता रहेगा। सो इसको कैसे याद रखना है, सो फर्स्ट वाले डायग्राम में आपको याद रखना है एफएसएच का लेवल जब हाई होगा तो एस्ट्रोजन का लेवल भी हाई ही रहेगा। एंड देन सेकेंड फेज में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई और एस्ट्रोजन लो, वहां पर एफएसएच का लेवल बाद में लो और एलएच का लेवल हाई दिखाना। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट ओवेरियन हार्मोन। देन यूटेराइन साइकिल यानी क्या है, यूटेरस के अंदर जो एंडोमेट्रियम वॉल होता है, सो पीरियड्स के टाइम में मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल के अंदर जो ब्लीडिंग होता है ये ब्लीडिंग कहाँ से होगा, सो ये जो एंडोमेट्रियम का वॉल है ये साइज में इंक्रीज हो गया, देखो 28 डेज में ये पूरा का पूरा इंक्रीज हो गया है। तो ये किसके लिए प्रिपेयर हो रहा है, सो आगे जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होने वाला है जाइगोट का फॉर्मेशन के बाद जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा
वो जाइगोट यहाँ पे आने के बाद ये एंडोमेट्रियम के वॉल में आके इम्प्लांट हो जाता है, और इम्प्लांट होने के बाद यहाँ पर ब्लड वेसल होते हैं, यूटेराइन ग्लैंड्स होते हैं, वो उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर वहां पर अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो फिर वो जाइगोट यहाँ पर ट्रांसफर ही नहीं होगा। अगर यहाँ ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो इसका साइज इंक्रीज करके कुछ फायदा नहीं है। तो फिर फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या हो जाएगा, ये जो साइज इंक्रीज हुआ है, यानी कि फर्स्ट 5 डेज में फीमेल में ब्लीडिंग होगा। और ये ब्लीडिंग क्यों होता है, तो ये जो वॉल है एंडोमेट्रियम के वॉल, यहाँ पर ब्लड वेसल होते हैं, यूटेराइन ग्लैंड्स होते हैं, सेल होते हैं, वो डिग्रेड होके वो डिग्रेड होके जो फेलोपियन ट्यूब में अनफर्टिलाइज एग है उसको भी वहां से लेके बाहर आ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूटेराइन साइकिल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस डायग्राम। अगर ये डायग्राम भी तुमने निकाल दिया और उसके हिसाब से याद रखा तो तुमको पूरा याद रहेगा। अभी हम लोग थोड़ा सा हमारे राइटिंग पार्ट पे चले जाते हैं। So the first phase of menstrual cycle is a ovarian cycle. The first phase of ovarian cycle, that is a menstrual phase. First one is a menstrual phase, that is starting of bleeding. Bleeding यानी कि first day of menstrual cycle, याद रखना। Then अब इसके अंदर क्या होता है, the beginning of each cycle, हर एक menstrual cycle के beginning में is taken as a first day. Okay, the beginning is call it as a first day, and in that first day what happened, just a minute, just a minute. Okay, see all of you. So what happened in that time, so first day where the menses and a loss of blood, menses यानी क्या है, bleeding होता है। so ये normally bleeding कितना होगा, और first day जिस दिन bleeding start होगा वो menstrual cycle का first day है, याद रखो। then how much ml of blood, so that is 45 to 100 ml of a blood is a loss during that period, and it lasts for approximately 5 days एंड एवरेज 3 to 7। किसी फीमेल में ये 3 days भी हो सकता है, 4 days भी हो सकता है, किसी में 5, किसी में 6 और 7 भी हो सकता है, बट द एवरेज ये 5 days के लिए ब्लीडिंग होता रहेगा। देन द नेक्स्ट पार्ट, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। अब ये जो ब्लीडिंग हो रहा है ये ब्लीडिंग कहाँ से आएगा, सो ये ब्लीडिंग जो एंडोमेट्रियम यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम का वॉल है ये ब्रेक हो रहा है। सो ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ अ यूटेरस अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ hormone, that is called it as a prostaglandin release due to decreased level of progesterone and estrogen। so जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये दो हार्मोन का लेवल, प्रोजेस्टेरॉन यानी क्या है, अगर प्रेगनेंसी मेंटेन रहा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है और एस्ट्रोजन का लेवल भी हाई होता है। बट अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कब लो होगा, अगर ओवुलेशन के बाद एक को अगर स्पर्म नहीं मिला, सो एट दैट टाइम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हो जाता है और फिर वो फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट कर देता और फिर एंडोमेट्रियम वॉल। सो डायग्राम में भी हम लोग देख सकते हैं, देखो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फर्स्ट डे में लो है। नाउ यू कैन सी दैट दिस डायग्राम, एस्ट्रोजन का लेवल और प्लस प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखो यहाँ से बराबर लास्ट डे में 28 डेज के बाद क्या हुआ, एस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों भी ओवरी सीक्रेट करते हैं, ये दोनों भी हार्मोन का लेवल क्या हो गया, लो हो गया, और ये फर्स्ट डे में एकदम ही लो है। इट इज टू मच लो at the time of first day of a menstrual cycle। so because of this two hormone level are too much low। okay, और इनको लो कौन कर रहा है, so disease decrease because of postglandin। so ये दोनों हार्मोन जब लो हो जाएगा सो पोस्ट ग्लैंडिन उसका इफेक्ट दिखाएगा, और पोस्ट ग्लैंडिन के इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, जो एंडोमेट्रियम का वॉल है वो डिग्रेड होगा और उसके वजह से ब्लीडिंग होगा फीमेल के अंदर फर्स्ट डे से लेके 5 डे तक एवरेज। डन ड्यू टू दिस व्हाट हैपेन, सो दैट एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर जो ब्लड है, देन टिश्यू है, फ्लूइड है, म्यूकस है, एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है एंड द अनफर्टिलाइज oocyte, साथ में जो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में अनफर्टिलाइज यानी कि जो एग को स्पर्म नहीं मिला था वो एग भी क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा वजाइना के रीजन से, ये ब्लीडिंग होगा। डन द नेक्स्ट पार्ट, एंडोमेट्रियम लाइनिंग बिकम वेरी थिन, ये डिग्रेड हो रहा है, एंडोमेट्रियम का वॉल डिग्रेड हो रहा है, सो ये सबसे स्मॉल साइज में चले जाएंगे, दैट इज अबाउट
1 millimeter of a size, 1 millimeter. So now I can see the diagram. First 5 day में, पहले जे में जो size था that is about 10 millimeter था, और ये धीरे 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 डिग्रेड होते होते कितना हो गया? So it is about the 1 millimeter का size हो जाएगा. Okay, so 1 centimeter से directly 1 millimeter size पे आ जाएगा. Then the next part, menstrual phase का next part, the average day. The menstrual discharge continue for an average of 5 day. फीमेल के अंदर ये एवरेजली 5 डेज के लिए रहेगा, बट किसी किसी फीमेल में कम ज्यादा हो सकता है, बट मैंने जस्ट एवरेज आपको बताया कि ये एवरेज 5 डे का रहेगा. बट एट दैट bleeding, okay, at that bleeding, normally when there is a cut is a take place on our body, so at that time whatever blood is coming outside, ये हार्डली 2 to 8 मिनट्स के लिए बाहर आएगा और फिर स्टॉप हो जाएगा. बट मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम जो ब्लीडिंग होता है ये स्टॉप नहीं होता है, प्लस ये ब्लड बाहर आने के बाद भी नॉर्मली लिक्विड लाइक पोर्शन में ही होता है. सो व्हाई? बिकॉज हाउएवर दिस ब्लड डज नॉट क्लॉट due to the presence of one protein that is called it as a fibrinolysin. Okay, so there is a presence of one chemical that is called it as a fibrinolysin. Because of this chemical that blood is not clot. Okay, ये blood क्या होगा? Clotting नहीं होगा. Then the next part, menstrual phase occurs when an ovulated egg does not get fertilized and it thereby shed off along with the menstruum. Okay, so thus it is called it as a funeral of unfertilized egg. So हम लोग कोई पर्सन का अगर डेथ हो रहा है तो हम लोग अकॉर्डिंग टू अवर रिचुअल्स हम लोग उसके अंदर रिचुअली कुछ करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड इट एज अ फ्यूनरल. सो वैसे ही इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज, अगर उस एग को स्पर्म नहीं मिला तो फिर उस एग को बॉडी से बाहर आना है और उसके लिए ये एक फ्यूनरल है. सो दिस इज द ब्लीडिंग वगैरह जो भी है, तो ये शेड ऑफ होके मेंस्ट्रुम के साथ में, ओके, मेंस्ट्रुम के साथ में ब्लड के साथ में ये एग क्या हो जाएगा? अनफर्टिलाइज एग बाहर आ जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इट एज द फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज एग. क्योंकि हम लोग फ्यूनरल डेथ वाले पर्सन के लिए रिचुअल्स करते हैं, वैसे ही ये इस अनफर्टिलाइज एग के लिए एक फ्यूनरल है. डन. ड्यूरिंग दिस 5 डे many primordial follicle, देखो at the time there is a two part. एट द टाइम क्या हो रहा है? सो एट द टाइम दो प्रोसेस हो रहा है. एक तो जो एंडोमेट्रियम, यूटेरस का जो एंडोमेट्रियम का वॉल है ये डिग्रेड हो रहा है और इससे ब्लीडिंग होगा. एट द सेम टाइम जो ओवरी है उसके अंदर भी कुछ चेंज होगा. सो ओवरी में क्या चेंज होगा? सो इन ओवरी देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल and that primordial follicle is converted into primary follicle and that primary follicle is converted into secondary follicle. Means से पहले तीन diagram, it is related with the 5 day of a menstrual cycle. So वही दिया है. During this 5 day, what changes take place inside the ovary? Many primordial follicle develops into primary follicle and then primary follicle. Okay, out of that all primary follicle, few of them are converted into secondary follicle under the effect of FSH. Now you can see the diagram. FSH का level यहाँ पर high हो गया. So FSH यानी क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये कहाँ से रिलीज होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से. उसको मैसेज कहाँ से मिला? तो इसको मैसेज देगा हाइपोथैलेमस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स का भी मास्टर ग्लैंड्स है. सो लाइकवाइज स्टूडेंट, ओके, स्टूडेंट्स यानी कि यहाँ पर समझो कि स्टूडेंट्स यानी यहाँ पर है ओवरी के फॉलिकल्स है. डन. इनको डेवलपमेंट के लिए कौन मैसेज दे रहे? एफएसएच. तो एफएसएच यानी टीचर है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, मैसेज दे रहा है एफएसएच है, और उनको मैसेज देने वाले कौन है? सो प्रिंसिपल. सो दिस इज अ हाइपोथैलेमस. सो वैसे ही यहाँ पर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मैसेज देगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से. देन जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो सिक्रीट करेगा एफएसएच ब्लड में, और ये ब्लड ओवरी में आते ही क्या होगा? सो दैट प्राइमोडियल फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी फॉलिकल एंड प्राइमरी फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू secondary follicle. Okay, so this is all about under the influence of FSH. इसीलिए यहाँ पर FSH का लेवल हाई हो रहा है और LH का लेवल लो रहेगा. ओके, और ओवरी के अंदर ये चेंज होंगे. ओके, ओवरी के अंदर ये सब चेंज होगा. नाउ वी आर गोइंग टू अ नेक्स्ट स्लाइड. द नेक्स्ट स्लाइड कंसिस्ट ऑफ सेकेंड फेज. ओके, हमने 5th डे वाला देख लिया. 5th डे में क्या क्या चेंज हुआ? सो FSH का लेवल हाई हुआ. FSH का लेवल हाई हुआ तो ये प्राइमोडियल फॉलिकल प्राइमरी और प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ.
देन हमने इसके अंदर और क्या देखे, सो फर्स्ट 5 डे में जो 10 मिलीमीटर साइज है एंडोमेट्रियम वॉल के वो डिग्रेड होके ब्लीडिंग होंगे और वो साइज कितना आ गया अभी 1 मिलीमीटर, मतलब एकदम लोअर पोजीशन के साइज पर आ गया. अब द नेक्स्ट साइकिल, that is the next cycle is from 5 to 13 days. Okay, the average of a next cycle, that is a 5th day to 13 days. This cycle is called it as a proliferative phase, follicular phase. Follicular phase भी बोला है because यहाँ पर follicle का development होता है. So this is called it as a follicular phase and a post menstrual phase. यानी कि menstrual जो phase है इसके बाद में है, इसीलिए post menstrual phase भी बोला. Okay, so this phase is duration between the end of menstruation and release of ovum. Now you can see that 14 डेज में जो ओवम रिलीज होगा उसके बीच का और प्लस 5th डे यानी कौन सा है मेंस्ट्रुअल फेज. सो मेंस्ट्रुअल फेज और 14 डेज में जो ओवुलेशन होता है इन दोनों के बीच का जो फेज यानी कौन सा फेज है, दैट इज कॉल्ड इट एज अ कंपैरिजन किया तो इसका ड्यूरेशन बहुत बार चेंज भी होता है, but normally and generally extend from 5th to 13 days. Okay, so it extend from 5th day of a cycle to a 13 days तक ये normally रहेगा of a menstrual cycle. Then a few, okay, what is the change take place inside a cortex of ovary? ovary के अंदर इस टाइम क्या चेंज होगा? सो देखो ओवरी के अंदर देखो जो 5th डे है उस टाइम क्या फॉर्म हो गया था, सो ओवरी के कॉर्टेक्स रीजन में सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो गया. सो अभी ये आगे का फेज करेगा. अभी आगे के फेज में क्या होगा, अ फ्यू 6 to 12 secondary follicle proceed to develop, but only one of them develop into Graafian follicle. Means that primordial follicle से जो भी secondary follicle form हुए हैं, out of that so many secondary follicle, only, okay, only one of them or some of them, okay, only one of the secondary follicle is converted into Graafian follicle. यानी कि इस स्टेज में ओवरी के अंदर जो कॉर्टेक्स होता है उस रीजन में क्या होगा, तो ये सेकेंडरी फॉलिकल का कन्वर्जन हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल में. सो दैट सेकेंडरी फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल विच इज आल्सो कॉल्ड इट एज अ मैच्योर फॉलिकल. इसके बाद ओवरी के अंदर इसके अंदर और ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता. नाउ अब मैंने बोल दिया कि 1, ओके, मैंने क्या बोला यहाँ पर कि ये जो 5 to 6 to 12 प्राइमोडियल सेकेंडरी फॉलिकल थे, आउट ऑफ देम दैट was converted into Graafian follicle. So जो remaining वाले Graafian follicle है वो क्या हुए, so remaining Graafian follicle, okay, other secondary follicle, sorry, other secondary follicle एक Graafian follicle में फॉर्म होगा एंड अदर जो secondary follicle है जो डेवलप नहीं हुआ है उनमें क्या चेंज होगा, so other secondary follicle are degenerate and this process of degeneration is called it as a atresia. उसको ही नाम क्या देना है, एट्रेसिया करके नहीं. एट्रेसिया ये वर्ड हमने ऑलरेडी देखा था. सो दैट इज डीजनरेशन. ये सब जो फॉलिकल है ये जब डीजनरेट होता है दैट इज कॉल्ड इट एज एट्रेसिया. सो देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, सो ये जो सेकेंडरी फॉलिकल जो फर्स्ट फेज में फॉर्म हो गया था, so out of that so many secondary follicle only one secondary follicle is converted into Graafian follicle and remaining secondary follicle are degenerate and this is called it as a atresia. और एक का कन्वर्जन किस में हो गया, ग्राफियन फॉलिकल में होगा. so this is all about the change in a cortex region of a ovary. ओवरी के कॉर्टेक्स रीजन में ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन हो गया. देन इसके साथ में कुछ हार्मोन्स हैं उनके भी कुछ रोल हैं. ओके, देयर आर सम हार्मोन्स उनके भी कुछ रोल हैं. सो व्हाट इज द रोल, डेवलपिंग सेकेंडरी फॉलिकल. ओके, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म हुआ था हमने क्या देखा, सो दैट सेकेंडरी फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल बट वन ही कन्वर्ट हुआ. सो डेवलपिंग सेकेंडरी फॉलिकल सिक्रीट वन हार्मोन दैट इज कॉल्ड इट एज एस्ट्रोजन. यानी कि ओवरी ने उसका हार्मोन सिक्रीट कर दिया. इसीलिए देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल धीरे धीरे हाई हो रहा है. कब हाई हो रहा है, बराबर 5th डे में. ओके, बराबर 5th डे में जो सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म हुए थे उस सेकेंडरी फॉलिकल ने धीरे धीरे क्या सिक्रीशन स्टार्ट कर दिया, सो इट विल सिक्रीट द एस्ट्रोजन हार्मोन और ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल फिर क्या हो जाएगा, हाई हो रहा है. सो नाउ यू कैन सी दैट एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो रहा है बट प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट नहीं हो रहा है, इसीलिए उसका लेवल लो ही रखना है. सो दैट इज
सेकेंडरी फॉलिकल विल सिक्रीट एस्ट्रोजन. सेकेंडरी फॉलिकल 5th डे में स्टार्ट होता है, इसीलिए ये लेवल के बाद में इसका लेवल धीरे धीरे क्या हो रहा है, हाई हो रहा है. The stimulation of proliferation of new follicle is influenced by gonadotropin releasing hormone GnRH, which stimulate the release of FSH. Okay, so ये जो चेंज हो रहा है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये हमने ऑलरेडी पहले ही देखा था. ये क्यों होता है? सो जो ओवरी है, ओके सॉरी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, ये एफएसएच सिक्रेट करता है. बट पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कौन मैसेज देता है? सो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हाइपोथैलेमस मैसेज देगा. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स के वजह से सिक्रेट करेगा एफएसएच, और फिर ये जो डेवलपमेंट है ग्राफियन फॉलिकल का, ओके, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, मींस ग्राफियन फॉलिकल. देन नेक्स्ट चीज, सो दोनों का हार्मोन्स का भी लेवल आपको समझ गया कि ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसने एस्ट्रोजन का लेवल हाई किया, इसीलिए एस्ट्रोजन का लेवल आपको यहाँ पर हाई हाई होते हुए 14 या 13 डे तक हाई बताना है. देन एफएसएच का लेवल भी यहाँ तक हाई दिखाना है, उसके बाद ये धीरे से लो हो रहा है. मतलब यार क्या है कि ग्राफियन फॉलिकल का जब तक डेवलपमेंट था तब तक ये लेवल हाई था, और उसके बाद में एलएच का लेवल हाई हो रहा है, और फिर एच का लेवल हाई रहेगा और एफएसएच का लो रहेगा. सो देन एंडोमेट्रियम बिगेन टू रीजनरेट एट द सेम टाइम. ये तो ओवरी में क्या चेंज हो रहा है, ओवरी ने कौन से हार्मोन सिक्रेट किए, वो कैसे चेंज हुआ, मतलब देखो पहले यहाँ पर क्या हुआ, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज किया हाइपोथैलेमस ने, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ने एफएसएच सिक्रेट किया, फिर ये जनरेशन स्टार्ट हुआ, फिर सेकेंडरी फॉलिकल ने सिक्रेट किया एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया. Now the next part, when the estrogen level is high, so what is the role of estrogen level? So जैसे ही secondary follicle estrogen का level high करेगा, तो जो first 5 days में ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है इसके साइज लो हो गए थे, ये फिर से रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये बराबर 13 डेज तक इसका साइज हो जाएगा 3 to 5 मिलीमीटर तक हो जाएगा. और इसके अंदर क्या हो जाएगा, सो दैट वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम आर इंक्रीज, और इसके अंदर ब्लड वेसल देन यूटेराइन ग्लैंड्स, इन सब का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होगा. सो वही पॉइंट दिया देखो, एंडोमेट्रियम बिगेन टू रीजनरेट अंडर द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन. सो सेकेंडरी फॉलिकल ने जो एस्ट्रोजन सिक्रेट किया था उससे ये लेवल जो हाई हो रहा है, ये हार्मोन ने क्या किया, तो इसने यूटेरस को मैसेज दिया है कि जो वॉल है एंडोमेट्रियम का इसका साइज इंक्रीज करना. और ये वॉल इंक्रीज होगा तो क्या क्या इंक्रीज होगा, एंडोमेट्रियम के सेल इंक्रीज होंगे, एंडोमेट्रियल प्लस यूटेराइन ग्लैंड्स, एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर जो यूटेराइन ग्लैंड्स होते हैं उसका वो इंक्रीज होगा. नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल क्यों लगेगा, बिकॉज यहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होना है. सो बेबी के लिए नरिशमेंट के लिए जो ब्लड आएगा और जो भी नरिशमिंग फ्लूइड है वो यूटेराइन ग्लैंड्स है, और प्लस ये ब्लड वेसल प्रोवाइड करेंगे. एंड द साइज ऑफ दैट विल बी इंक्रीज फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू 3 to 5 मिलीमीटर, यानी कि ये साइज 1 से लेके अभी 3 to 5 हो जाएगा 13 डेज तक. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट होल डायग्राम. देखो ये डायग्राम में यहाँ से स्टार्ट हुआ एफएसएच, देन एफएसएच ने फॉलिकल का स्टार्ट किया, देन सेकेंडरी फॉलिकल ने एस्ट्रोजन का लेवल लो हाई किया, और एस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम के वॉल का साइज थिकनेस बढ़ाना स्टार्ट किया. नाउ थर्ड फेज, थर्ड फेज इज द शॉर्टेस्ट फेज, ये सिर्फ 1 डेज का, ओके ये 1 डे का फेज है. सो इट इज अ सो मच स्मॉल फेज. सो वही पॉइंट दिया, ओवुलेटरी फेज. व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओवुलेटरी फेज? सो ओवा दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ सेकेंडरी oocyte इनसाइड अ ग्राफियन फॉलिकल. सो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो सेकेंडरी oocyte है वो वहां से रिलीज होके बाहर आ जाएंगे, ओके दिस इज कॉल्ड एज ओवुलेशन, और ये बराबर 14 डेज में होगा, ओके बराबर 14 डेज में. ये दैट विल बी चेंज, हर एक फीमेल के लिए थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है. सो अगर कितने डेज का है उसके ऊपर डिपेंड है. यहाँ 28 है इसीलिए हाफ यानी कि 14 डेज में ओवुलेशन हो गया. सो व्हाट हैव बीन, ओके सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच, ओके LH कहां से सिक्रेट होगा, सो LH is secreted from pituitary glands. So rapid secretion of LH by positive feedback mechanism
causes a mature follicle to rupture. तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल विच इज ऑल्सो कॉल्ड इट एज अ मैच्योर फॉलिकल, ये रप्चर हो जाएगा और ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच। इसीलिए देखो बराबर 14 डेज में एलएच का लेवल एकदम हाई हो गया। ये कहां से सिक्रीट हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हुआ। So pituitary gland will secrete a high amount of LH, that is luteinizing hormone. So under the influence of that hormone, that Graafian follicle or mature Graafian follicle रिलीज ओवम। ओवम या तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, यानी कि सेकेंडरी oocyte का आगे डेवलपमेंट होता है ओवम में। तो अभी पूरा का पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको सेकेंडरी oocyte ही बोलना है। सो फिर क्या हो जाएगा? सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट एलएच हार्मोन, जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर हो जाएगा और इसके अंदर जो सेकेंडरी oocyte यानी कि ओवम है ये वहां से बाहर आ जाएगा बराबर 14 डेज में of the menstrual cycle under the influence of luteinizing LH hormone by pituitary gland. Then the next part, ovulation may be accompanied by mild and a severe pain. हर एक फीमेल में नहीं होगा, बट सम फीमेल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जब ये 14 डेज का होगा, सो एक तो पहले तो फर्स्ट 5 डेज है उस टाइम ब्लीडिंग के टाइम थोड़ा सा पेन होता है, एंड देन फिर ये ओवुलेशन का जब टाइम आएगा तो उस टाइम माइल्ड या तो सम फीमेल में ये सीवियर पेन लोअर एब्डोमिनल रीजन में होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड फेज, that is ovarian cycle. This is about the third phase of ovarian cycle. Now the next phase, that is the last phase, which is the bigger phase. Now you can see that 14 days में हो गया ovulation phase. So अब इसके बाद क्या होगा? 15 से लेके 20 days, that is a half, that is a 14 days, सबसे bigger phase है. So secretory and luteal phase. Secretory and a luteal phase is the longest phase. It is the longest phase. It lasts for 14 days. It start from 15 day and it is end into a 28 days of the menstrual cycle. जो last वाला day है तब तक ये रहेगा. Then what are the changes take place inside? Okay, what are the changes take place? और ये कौन से हार्मोन से होगा? So after release of secondary oocyte, okay, सेकेंडरी oocyte यानी जो ये ओवम है ये जैसे ही रिलीज हो जाएगा, रिमेनिंग टिश्यू ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, नाउ यू कैन सी दिस डायग्राम, ये जो ग्राफियन फॉलिकल था इसमें से ये जब ओवा यानी कि सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया तो जो ये रिमेनिंग पार्ट बचा है, किसका पार्ट बचा है? remaining part of Graafian follicle. So that remaining part of Graafian follicle are transferred into yellow color body. The name of that body is called it as a corpus luteum. So this is called it as a corpus luteum. और ये किसके इन्फ्लुएंस में होगा? So now we can see that LH का लेवल हाई है, LH का लेवल हाई है, FSH का लेवल लो ही है, बिकॉज अब फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टॉप हो गया है, सो अल्टीमेटली FSH का लेवल लो रहेगा और नेक्स्ट फेज में ल्यूटियल फेज यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल हाई रहेगा, LH हार्मोन का लेवल यहाँ पर हाई रहेगा। सो ये डायग्राम समझ गया कि यहाँ पर LH का लेवल हाई रहेगा और उसके वजह से क्या हुआ? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट LH हार्मोन, remaining part of Graafian follicle is converted into yellow color body, that is called it as a corpus luteum. This is called it as a corpus luteum. Then the next part, corpus luteum began to secrete progesterone and estrogen. देन ये जो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हुआ, देखो अभी पहले हमने क्या लिया फर्स्ट डायग्राम में, एलएच का लेवल हाई हुआ, उसने क्या किया? रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल को कन्वर्ट कर दिया येलो कलर बॉडी कॉर्पस ल्यूटियम में। नाउ द कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? सो दैट कॉर्पस ल्यूटियम विल सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। इसीलिए यहाँ पर देखो डायग्राम में दिख रहा है आपको, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ये फेज में हाई ही रखना है, बिकॉज आगे जाके फर्टिलाइजेशन हो सकता है, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन यानी कि प्रेगनेंसी हार्मोन है, इसका लेवल ये जो ल्यूटिनाइज कॉर्पस ल्यूटियम है ये दोनों हार्मोन को सिक्रेट करेगा। सो इसीलिए देखो ये जैसे फॉर्म हुआ तो एस्ट्रोजन का लेवल भी हाई हो गया और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ही ज्यादा हाई हो गया। डन। नेक्स्ट पार्ट, ओवुलेटेड एग में अब आगे फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा? तो देखो अभी क्या हुआ, ये जो एग और सेकेंडरी oocyte निकला है तो ओवुलेशन के टाइम फिर इसको 14 डेज में कौन कैच करेगा? फिमरे ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ओके, थोड़ा सा याद करो, जो फैलोपियन ट्यूब है यूटेरस के ऊपर जॉइंट है, उसका फिमरे वाला पार्ट इसको कैच कर लेगा और फिमरे के अंदर जो सिलिया होते हैं और प्लस फिमरे के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उस ओवम को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी कि वो फिमरे से लेकर कहां पर आ जाएगा?
ऑस्टियम, ओके, फिमरे के ऑस्टियम के पार्ट में से ये मिडल पार्ट में आ जाएगा फेलोपियन ट्यूब के, दैट इज कॉल्ड इट एज एम्पुला। अब उस एम्पुला को स्पर्म मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मतलब 14 डेज में जो एग यहाँ से निकल गया, अगर इस फीमेल का 15 डेज में, 16 डेज में या 14 डेज में या तो 13 डेज में किसी मेल के साथ अगर कॉपुलेशन हुआ होगा, तो एट दैट टाइम मेल का सीमेन, ओके, मेल का जो सीमेन है वो फीमेल के वजाइनल रीजन में सिक्रीट हो जाए, और ये वजाना में जो सीमेन सिक्रीट हुआ उसके अंदर जो स्पर्म है ये अंडुलेटिंग मूवमेंट से एम्पुला तक ट्रैवल करेगा और फिर वहां जाके फर्टिलाइजेशन हुआ। बट ये फीमेल का अगर किसी मेल के साथ फर्टिलाइजेशन कॉपुलेशन नहीं हुआ है, सो अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सो आगे का प्रोसेस फर्टिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड है। सो वही पॉइंट दिया देखो, द ओवुलेटेड एग may get fertilized, ovulated egg may get fertilized within the 24 hour, मतलब ओवुलेशन के बाद जो एग यहाँ से निकला है वो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा और वहां पे जाने के बाद ये उसके 24 आवर में फर्टिलाइज हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर ये डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाए। सो हाउएवर इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, सो इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटिनम कैन सर्वाइव फॉर ओनली 2 वीक्स, यानी कि इसीलिए ये जो ये है ये बराबर कितने दिन का है, 2 वीक्स, यानी कि 14 डेज का। सो इफ देर इज अ फर्टिलाइजेशन इज नॉट टेक प्लेस, देन दैट कॉर्पस ल्यूटियम जो फॉर्म हुआ था ये हार्डली 2 वीक यानी कि 14 डेज के लिए ऐसे ही रहेगा और धीरे धीरे डीजनरेट, और फिर लास्ट में ये डीजनरेट हो जाएगा। नाउ दैट कॉर्पस ल्यूटिनम after degeneration it is converted into a white color scar body that is called it as a corpus albicans। so यहाँ पे ये डायग्राम में नहीं दिखा है बट यहाँ पर थोड़ा सा इसे समझो कि ये जो कॉर्पस लुटियम है ये व्हाइट कलर के बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा लास्ट में, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो दैट व्हाइट कलर बॉडी इज कॉल्ड इट एज अ कॉर्पस अल्बिकांस, उसका नेम है कॉर्पस अल्बिकांस करके नेम। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्लाइड। नाउ वी आर गोइंग टू अ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में फिर और क्या हो रहा है, सो कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम हमने ऑलरेडी देखा था, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हुआ है ये दो हार्मोन सिक्रेट करता है, एक प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा वाला एस्ट्रोजन, ये दोनों को सिक्रेट करता है। नाउ कॉर्पस ल्यूटियम रिलीजेस प्रोजेस्टेरॉन, स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल तो हाई सिक्रेट करेगा बट स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन, इसीलिए एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा लो है। देन इनहिबिन एट द सेम टाइम ये और एक केमिकल सिक्रेट करेगा दैट इज कॉल्ड इट एज अ इनहिबिन। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, okay, under the influence of this hormone that is progesterone, then estrogen and inhibin, the endometrium gland grow, okay, endometrium के जो glands है वो फिर से साइज में और इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड इट बिकम्स अ कॉइल्ड एंड यूटेराइन सिक्रीशन ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट करेंगे। अब ये क्यों सिक्रीट होता है देखो, तो ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्यों सिक्रीट करता है कि सपोज कि यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ से जो एग निकला था उसका अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद एम्पुला में से ये एग यूटेरस में आता है और यूटेरस के इस एंडोमेट्रियम वॉल में आके इम्प्लांट हो जाता है, और यहाँ इम्प्लांट होने के बाद यहाँ पर जो यूटेराइन ग्लैंड्स है और जो ब्लड के वेसल है ये इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे और फिर वो एम्ब्रियो बेबी में डेवलप होता है। सो बिकॉज ऑफ दैट, okay, because of that this all hormone that is progesterone, estrogen and inhibin ये क्या करेंगे, एंडोमेट्रियम का जो ग्लैंड्स है यानी कि एंडोमेट्रियम के यूटेराइन ग्लैंड्स है, बट ये और प्लस ये एंडोमेट्रियम का जो वॉल है इसका क्या करेंगे, साइज में इंक्रीज करेंगे और ये साइज हो जाएगा 8 to 10 मिलीमीटर, यानी कि ये पूरे 1 सेंटीमीटर का साइज हो जाएगा, 5 से अभी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। and it is vascularized। what is the meaning of vascularized? ब्लड के वेसल भी इंक्रीज हो जाएंगे। ब्लड के वेसल क्यों इंक्रीज होंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, सो इन दैट रीजन जो फेलोपियन ट्यूब में जो फर्टिलाइज एग फर्टिलाइज होने के बाद जो एग है जाइगोट है, वो जाइगोट का मूवमेंट कहाँ पर होगा, ये एंडोमेट्रियम वॉल में आके क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा, और इम्प्लांट होने के बाद यहाँ पर जो ब्लड वेसल है
वो जितने ब्लड वेसल है वो उसको ब्लड प्रोवाइड करेंगे और नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे बेबी को. सो इट इज वस्कुलराइज प्लस यूटेराइन का सिक्रीशन करेंगे, यूटेराइन ग्लैंड्स, और ये ग्लैंड का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ progesterone and estrogen and inhibin secreted by this yellow color body that is called it as a corpus luteum. Then inhibin स्टॉप. अब देखो यहाँ पर दो हार्मोन थे, प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजेन, तो ये साइज इंक्रीज करेंगे. देन थर्ड हार्मोन था इनहिबिन. व्हाट इज द रोल ऑफ इनहिबिन? इनहिबिन स्टॉप द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच. इनहिबिन क्या करेगा, जो एफएसएच, अभी एफएसएच का सिक्रीशन क्यों लो करना है, अब आगे अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर यहाँ सपोज करो कि फर्टिलाइजेशन हो गया और बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, तो फिर आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आना चाहिए. ओके, सो क्योंकि लिए बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, सो ऑलरेडी अगर बेबी डेवलप हो रहा है तो एक का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए. तो ये जो थर्ड वाला हार्मोन जो सिक्रेट कर रहा है कॉर्पस लुटियम, दैट इज कॉल्ड एज अ इनहिबिन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट इनहिबिन एफएसएच का लेवल लो हो जाएगा. इसीलिए आपको ये डायग्राम में देखो, जो ये बराबर 14 डेज है, इसके अंदर एफएसएच का लेवल क्या मिल रहा है, लो, और क्योंकि यहाँ फॉलिकल का फॉर्मेशन स्टॉप हो जाता है. सो दिस चेंजेस आर नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन एंड सबसिक्वेंट इम्प्लांटेशन. फर्टिलाइजेशन के लिए भी जरूरी है, और प्लस फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो है और ए जाइगोट है, वो इम्प्लांट होने के बाद उसको ब्लड और नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज ऑल अबाउट द फोर्थ फेज. देन द नेक्स्ट फेज और क्या होगा यहाँ पर, ओके, और भी कुछ हार्मोन्स है. सो हाउएवर इफ ओवुलेटेड एग गेट्स फर्टिलाइज, अगर फर्टिलाइज हुआ तो हमने देख लिया. सो और क्या होगा, इफ ओवुलेटेड एग गेट्स फर्टिलाइज एंड द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड. ओके, एग अगर फर्टिलाइज हो गया तो वो एग मूव करेगा, यूटेरस के एंडोमेट्रियम वॉल में आके क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा. सो एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड, देयर इज अ सिक्रीशन ऑफ ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. ह्यूमन कोरियानो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रीशन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा उस रीजन में, और फिर बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पार्ट. देन अब ये इसका रोल क्या है, ये जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है इसका रोल क्या है. ओके, सो व्हाट इज द रोल ऑफ दिस, प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन कोरियानो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो एम्ब्रियो है वो यूटेरस के एंडोमेट्रियम वॉल में आके इम्प्लांट हो गया. सो ये प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यूज होगा. मींस प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जो भी किट आता है, उस किट में क्या होता है, सो दे आर टेकिंग अ यूरिन सैंपल. ओके, डे में और नाइट में जो भी यूरिन स्टोर हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, सो डे में उस यूरिन का 1 to 2 ड्रॉप्स उस इंडिकेटर वाला जो प्लेट होता है उसके ऊपर ऐड करते हैं. सो इन दैट इफ फीमेल इज अ प्रेग्नेंट, सो उस फीमेल प्रेग्नेंट के अंदर, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ह्यूमन कोरियानो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है, और ये उनके ब्लड के अंदर और प्लस यूरिन में होता है. सो इफ वी आर टेकिंग अ सम अमाउंट ऑफ यूरिन and we are adding on that, so it is an indicator of pregnancy. ये जो हार्मोन है ह्यूमन कोरियानो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, सो ये हार्मोन्स क्या है, प्रेगनेंसी के लिए यूज होता है उस किट के अंदर, उसी केमिकल का वो लोग यूटिलाइज करते हैं. सो दैट केमिकल इज indication of a pregnancy during that that is a human कोरियानो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. Then in absence of fertilization, अगर fertilization नहीं हुआ तो क्या होगा, so in absence of fertilization next menstrual cycle begin, यानी कि ये जो येलो कलर बॉडी है येलो में रहेगा अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, so that yellow color body is converted into white color body that is called it as a corpus albicans, और फिर से ये menstrual cycle start